जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान, और आपका भी शुक्रिया जो अगले कुछ लम्हों में मुझे बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे। Before I proceed towards the marketing aspects of entrepreneurship, there are certain things which have to be clarified. और आपको जैसा कि डॉक्टर इरफान जैसे अच्छे टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहले से आपको क्लियर होंगे। क्लैरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि आप में से जितने लोग क्लियर हैं कि बीबीए वो क्यों कर रहे हैं और इस बीबीए को अपने कैरियर के साथ कहाँ अटैच करना है, दोज लकी पीपल आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अदर्स, एंड दोज हु आर स्टिल नॉट क्लियर, तो फिर जो मामलात प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपनी जगह। बिल्कुल इसी तरीके से ऑल दोज पीपल हु कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप ओनली अ बिजनेस, they are also in hot waters. Second thing to be clarified is that entrepreneurship is basically a mindset. If you display that mindset into business, it becomes entrepreneurship. If you display that mindset in personal life or in job, that becomes intrapreneurship or omnipreneurship. Number third thing, most of the people consider entrepreneurship as ordinary, as orthodox, as starting any routine business. It's not like that. Fourth thing, most of the people, whenever they are talked to, they consider that they have not started business yet because they have no money. That's totally a myth. एंड स्पेशली अ मिथ फॉर दोज पीपल जो सारी उम्र यही सुनते आए हैं कि कारोबार के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। सो उनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पैसे के बगैर बिजनेस कैसे। यही कमाल है एंटरप्रेन्योरशिप का, दैट द गुरुज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एडवोकेट दैट बैंक लोन्स, अदर फंडिंग्स शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी. If your product is very, very technically advanced, compulsorily it requires a lot of money, then only you should go for that. Otherwise, no loans and no fundings. So, clarifying these things, primarily, I wanted to tell you that unfortunately, we do not link our 4 years of BBA with our actual life. That is the biggest irony. So till the time you don't develop yourself as a human being, you will not do good in business, you will not do good in job. So utilizing these 4 years as a human being to develop, you will carry all those qualities which you have developed during this 4 years tenure to business. You will be successful. If you take it to the job career, you will be successful. But if as a human being you are not punctual, you are not authentic, you are not credible, you are afraid of taking risks, your assignments are copy paste and routine, no innovation, no creativity, nothing special. So same things you will carry to your business and to your job, and you will display the same. Now coming over to the entrepreneurship, in Pakistan market there are numerous startups which you hear and see every month are being launched. With the government support also, government funding also, SMEDA is doing a lot, and private organizations also. But if you see, after 4 months or 6 months, the survival rate is only 10%. That is the irony. And one of the major reason is not Corona. One of the major reason is all those entrepreneurs do not develop themselves as an entrepreneur. और वो भेड़ चाल में, शौक में, देखा देखी बिजनेस लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल के लिए जो आपको एंट्री केसेस को डील करना पड़ता है, जो इनोवेशंस चाहिए, मैनेज करने के लिए जो आप में क्वालिटीज चाहिए और ग्रो करवाने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, दे आर मिसिंग. Another important thing which I want to share it with you is that the concept of innovation is very, very fragile, very limited, and very vague with us. Hard work is not that hard work which we think here.
Hard work, innovation is not innovation which we think here. Linked to this, another problem which I see and I address, that due to the limited thinking and lack of interest, we only confine to the projects of creating, launching a restaurant, a tea shop, a boutique. इससे बाहर हम निकलते ही नहीं, जबकि earning money in a big way, creating your impact in a big way in ordinary businesses से बाहर है. और उसके लिए one of the best advice which I give to the students or the professional is that there are two ways in which you can start business. Number one, all the successful entrepreneurs of the world only started that business which was their passion, which was their forte. That is the common thing between millionaires and billionaires, जिनके नाम हमने याद कर रखे हैं और जो उन्होंने मेहनत की है उस पर तवज्जो नहीं देते. So if you want to start a business, lesson for you is please start that business जिसकी आप में सलाहियत है, जिसका आपको शौक है. Second method is that many a times you are unable to find your passion and your interest. Okay, then the successful entrepreneurs are those entrepreneurs which come out with solution to some of the socio-economic problem in their society, in their province, in their country. They are very successful. Third category, वो फिर totally depend करता है कि वो short time success हासिल करें या long time success हासिल करें. Business चले ना चले, 1 साल 2 साल के अंदर अंदर बंद कर दें क्योंकि दिल नहीं है, पैशन नहीं है. So these are the basic reasons जिसकी वजह से आपको sustainable businesses पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलते हैं. So the take home lesson of this my first part is that please clarify misconceptions, be very clear about your career, about entrepreneurship, about your BBA, about anything. One of the major quality of successful people is they are very clear-headed. And second thing, if you want to do something in business, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए. या तो जो फूडीज हैं आप में से, ओके, उनको फूडी या फूड से रिलेटेड बिजनेस के अलावा मोस्ट प्रोबेबली किसी और बिजनेस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनका शौक है. लेकिन उसमें भी आके इनोवेशन डज नॉट मीन कि आप 10 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं रोड पे और 11वां आप खोल लें विद a bit of color change and logo change. This is no innovation. I forgot to bring, कभी आधा मौका मिला मैं आपके सर को दूंगा, स्ट्रीट रेस्टोरेंट इन शारजा UAE, स्ट्रीट रेस्टोरेंट गली के नुक्कड़ का रेस्टोरेंट, उसका मैं आपको मेन्यू कार्ड दिखाऊंगा एंड देन यू विल कम टू नो कि ओ दिस इज अ मिनिमम एग्जांपल ऑफ इनोवेशन. 200+ वेजिटेबल डिशेस, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और 8-10 सफ़े का वो मेन्यू है विद जस्ट वन स्मॉल शॉप एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट एवरी टाइम. इसमें मैं आगे चल के बात करता हूं क्या प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज क्लैरिफाई दीज मिसकंसेप्शंस. नेक्स्ट पोर्शन जो कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग. अगेन you should be very clear what marketing is. Unfortunately, most of the people consider marketing as promotion, as advertisement. तो यहीं से सारी चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं. जैसे कि इनका कोई नाम कुछ और है, किसी और नाम से बुलाता जाए तो ये नहीं देखेंगे भाई, बिकॉज इनका नाम नहीं है ये. उसका फिर इफेक्ट कम आएगा, इनको बुलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. सेम थिंग इज हैपनिंग कि हम अपने वेग आइडियाज और डाउट्स की वजह से जब मार्केट में जाते हैं इसी तरह की चीजें करते हैं और वो वक्ती तौर पे सीधी उल्टी हो जी, सीधी कभी प्रॉफिट आ गया कभी ना आए, ऐसे ही चल रहा है. सो मार्केटिंग इज ए कंप्लीट प्रोसेस विच यू शुड अंडरस्टैंड, जो कि प्रोडक्ट को कंसीव करके
उसको बनाने और कस्टमर्स की नीड को पूरा करने तक ही खत्म नहीं होता। आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो भी बाद में इस प्रोसेस का हिस्सा है। इसकी आसानी के लिए जो मार्केटिंग गुरुज हैं, उन्होंने आसानी के लिए 4P बना दिए, 7P बना दिए। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मार्केटिंग का प्रोसेस है, उसमें 4Ps पे ज्यादा फोकस करना होता है। क्यों? कि प्रोडक्ट नजर आती है, उसको टच किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। सर्विस नजर नहीं आती, उसको टेंजिबल बनाने के लिए 3Ps और ऐड कर दिए जाते हैं ताकि वो टेंजिबल बने। और टोटल 7 और 8वें P का भी जिक्र कई गुरुज ने किया है, दैट इज पैकेजिंग। P फॉर पैकेजिंग, कि पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है कि इसको मार्केटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बना दिया गया। सेकेंड थिंग आफ्टर दिस क्लैरिफिकेशन इज दैट इट स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम द प्रोडक्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंडसेट, द आइडिया बिहाइंड दैट प्रोडक्ट और सर्विस विच यू आर गोइंग टू लॉन्च। इस वक्त सर्विस मार्केटिंग की भी बहुत ज्यादा, सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एज कंसल्टेंट्स, एज ट्रेनर्स, एज मर्चेंडाइजर्स, एज कोऑर्डिनेटर्स। इफ यू डोंट वांट टू लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट, यू कैन गेट इनटू सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ यू कैन कम, बट उसके लिए जाहिर है क्या कॉम्पिटेंस आप में होनी चाहिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया। क्या आइडिया आया आपको? एक तरीका मैंने आपको बताया, योर पैशन, योर इंटरेस्ट, योर शौक कैन ट्रांसफॉर्म एंड कैन गिव यू एन आइडिया। और अगर कोई शौक या पैशन नहीं है तो सम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन गिव यू एन आइडिया। अब उस आइडिया में ऑर्डिनरी रूटीन चीजें नहीं चलेंगी, पाकिस्तान में भी, रीजन में और ग्लोब में तो बिल्कुल नहीं चल रही। इवन स्मॉल लिटिल शॉप्स, स्मॉल लिटिल रेस्टोरेंट्स, वाटर बॉटल बनाने वाले, स्टैंड बनाने वाले, दे आर कमिंग अप विद वेरी वेरी इनोवेटिव एंड विद लॉट ऑफ एस्थेटिक्स। मैं एंड पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा टू माय रीसेंट टूर टू एक्सपो 2020 UAE दुबई। और उस पे अगर आप माइंड ग्रूमर्स पीके YouTube पे चैनल देखें तो देयर इज अ वीडियो, लेसन्स टू बी लर्न्ड फ्रॉम एक्सपो 2020, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं। माइंड ग्रूमर्स पीके एट YouTube। अच्छा, ये मैं बातचीत करने के बाद आई विल गिव यू एन एम्पल चांस टू आस्क क्वेश्चंस। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। पहले आप सुन लीजिए। सो आइडियाज कहां से आते हैं? आइडियाज आते हैं द वे यू थिंक। आपकी सराउंडिंग क्या है, आपका दिमाग किस तरफ चलता है। तो आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दावत दूंगा कि प्लीज अपने इर्द गिर्द सोचिए कि आप किस ऑर्डिनरी ऑर्थोडॉक्स माहौल में रह रहे हैं, तो आइडियाज भी वैसे ही आएंगे। जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल में रह रहे हैं, जितना आपके फ्रेंड्स आपके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपकी रूटीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यू वॉच वीडियोस, यू गो टू द मार्केट, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, उतने जबरदस्त आइडियाज आएंगे। अदरवाइज तो रूटीन आइडियाज सब में आते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर नेगेटिव आते हैं। तो यहां से प्रोसेस शुरू होता है। अगला स्टेप, मैं अपने उस आइडिया को किस तरीके से कमर्शलाइज करूं, बिकॉज आइडिया इज गोइंग टू बी अ वेस्ट इफ यू डोंट ट्रांसफॉर्म इनटू ए टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विस। उसके लिए कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस है। कैसे इस आइडिया को मैं प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करूं प्रॉफिटेबली, दैट इज नोन एज कमर्शलाइजेशन। देन कम्स द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहां इनोवेशन का लेवल भी बिल्कुल ऑर्डिनरी, कि पहले ये कुर्सी का कलर इस तरह का था, हमने इसको रेड कलर दे दिया, दिस इज इनोवेशन। और उसका वन ऑफ द रीजन इज कि जिनको तो ऐसे अच्छे टीचर मिल जाते हैं, वो थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट इनटू थिंकिंग प्रोसेस एज ए नेशन ऑल्सो। वी आर वन ऑफ द मोस्ट अनथिंकिंग नेशंस। आइडियाज आते हैं, रिफाइन होते हैं थिंकिंग से। जितना ज्यादा आपको सोचने की आदत है, ऑब्जर्व करने की आदत है, उतना क्रिएटिव होंगे आप, उतना उस आइडिया को दूसरों से डिफरेंशिएट करके आप लाके पेश करेंगे। और आप जैसे लोग जिनको सोचने की आदत पड़ जाती है, ये एक कैमरा स्टैंड पड़ा हुआ है, अगर आप सोचना शुरू कर दें, यू कैन कम अप विद एन इनोवेटिव कैमरा स्टैंड विद लॉट ऑफ इनबिल्ट मैकेनिज्म, इनबिल्ट फैसिलिटीज,
लेकिन वो सोचने से आएगा ना। इसीलिए भी हमारी मार्केट में ज्यादातर बिजनेसेस फ्लॉप हो रहे हैं, स्टार्टअप्स फ्लॉप हो रहे हैं कि दे आर जस्ट भेड़ चाल का शिकार, कमिंग अप 19-20 के फर्क से दे आर लॉन्चिंग बिजनेस। ऐसे नहीं होगा। मैंने आपसे कहा पाकिस्तान में भी और रीजनली एंड ग्लोबली तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, कंज्यूमर की थिंकिंग चेंज हो रही है, डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। रोजाना एक नई खबर मिली होती है आपको, रोजाना एक नई प्रोडक्ट आप देखते हैं। पाकिस्तान का जो स्टॉल था यूएई दुबई एक्सपो में, दैट वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज कंपेयर टू चाइना, एज कंपेयर टू यूएई, एज कंपेयर टू कोरिया। अनबिलीवेबल डिस्प्ले ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान का विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेस इसलिए भी डिफरेंट था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने विजिट किया, कि उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से एक तो एस्थेटिक्स को पोर्ट्रे किया था, दूसरा अपनी जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के अलावा, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बड़ी प्रोडक्ट तो नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा डिस्प्ले किया गया और वो अट्रैक्शन का सबब बन गया। यहां से एक और हमें लेसन मिलता है कि आप अगर अपनी वीकनेसेस पे देखते रहेंगे तब भी सारी उम्र कुछ नहीं कर सकेंगे। अपनी लिमिटेशंस को अगर आप सोचते रहेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव लॉट ऑफ लिमिटेशंस विद नो नॉलेज, नो एक्सपीरियंस। तो लिमिटेशंस को अगर आप देखते रहेंगे फिर तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स टू डिस्प्ले। 191 नेशंस के वहां पे स्टॉल लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान वाले सिर्फ यही सोचें कि भाई इतनी तगड़ी किस्म की नेशंस है, हम क्या बनाएं, तो मेरा ख्याल है हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते, रहने दो, छोड़ो। लेकिन यू हैव टू कम आउट वट एवर योर स्ट्रेंथ्स आर। मे बी वो यूनिक है, मे बी वो किसी और के पास नहीं है। प्रोडक्ट को बनाना, उसको तैयार कैसे करना है, उसमें क्वालिटी का ख्याल कैसे रखना है, उसमें इनोवेटिव जो मैंने चीजें डाली हैं उनको कैसे मैंने मैनेज करना है, इट रिक्वायर्स रियली अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड लॉट ऑफ स्किल्स। लेकिन जो कर जाता है वो दूसरों से कामयाब है। बाकियों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, आपका काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चाहे कोरोना है चाहे नहीं। देन कम्स उसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग में एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं, बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर में वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस, बिजनेस पर्सन ओनली कम्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंटरप्रेन्योर कम्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक चेंज। सो यहां पे शुरू में उसको एडवांटेज मिल गया अपनी सोच का कि वो चूंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आप नहीं आए हो, इसलिए आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है काफी टू प्ले। और प्राइसिंग कंट्रोल करके, कम करके, कॉस्ट इफेक्टिव रख के अगर आप अच्छी क्वालिटी दोगे तो आपका कंपटीशन ही कोई नहीं रहेगा, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। ये एडवांटेज होता है एंटरप्रेन्योर्स को अगेंस्ट द बिजनेस पर्संस। देन कम्स प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, सप्लाई चेन इज बिकमिंग मोर इंट्रिकेट, मोर स्पेशलाइज्ड, बट ए वंडरफुल हाईली पेड कैरियर। छोटी से छोटी चीज अगर आपने अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है, बना के, उसमें भी पूरी सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, एंड टू द बिगर कंपनीज लाइक ऑयल एंड गैस, लाइक कंस्ट्रक्शन, सप्लाई चेन इज ह्यूज, जो कि कई मुल्कों तक फैली हुई है, उसमें कई प्लेयर्स हैं, उसको आपको मैनेज करना है। वहां पे भी आपकी ये एंटरप्रेन्योर्स वाली सोच काम देगी। अगर आप अपना बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तब भी यू विल बी सक्सेसफुल। उसको कैसे डिजाइन करना है, प्रोडक्ट भी कई लोग बना लेते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस लॉन्च करने का सोच लेते हैं, बट दे आर अनएबल टू डिफाइन द सप्लाई चेन and ultimately they are unable to manage the supply chain and they fail. बेहतरीन प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंचने की वजह से भी फेल हो सकती है। So you don't have to take care of any one P, you have to take care of the complete package. तब जाके आप सस्टेनेबल बनोगे। And then comes promotion. और जैसा कि ये भी आप लोगों को पता होगा कि प्रमोशन को मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, लेकिन 4th P ऑफ मार्केटिंग इज प्रमोशन। प्रमोशन के 5 एलिमेंट्स हैं।
आई होप इसका भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो जिनको नहीं पता है वो पता कर लें। अगर पता किए बगैर प्रमोशन करेंगे तो जाहिर है कच्ची पक्की रोटियां पका के खिलाएंगे ना, किसी को पेट में दर्द होगा, किसी को कुछ होगा। एंड इफ यू नो कि मेरे पास क्या मार्केटिंग कम्युनिकेशन या प्रमोशन के एलिमेंट्स अवेलेबल है, इनको किस तरीके से मैंने, और आईएमसी भी आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कैसे इनको इंटीग्रेट करके मैंने यूज करना है, दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। एंड मोस्टली आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पे पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं। इफ यू नो कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल है मेरे पास। जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ से मुराद डिग्रियों वाले, कम पढ़े लिखे, जिनको आइडिया नहीं है, जिनकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, उनको प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें नजर आती, एडवर्टीजमेंट, टीवी कैंपेन्स या सोशल मीडिया। अंधाधुंध हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और वेस्टिंग टाइम, मनी एंड समटाइम्स कस्टमर्स आल्सो। सो सोशल मीडिया के 5 ट्विटर एंड फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल नहीं है, इट हैज मोर देन 50 चैनल्स। बाकी यूज ही नहीं होते क्योंकि हमें पता ही नहीं। देन प्रॉपर इफेक्टिव एंड कस्टमाइज्ड यूज ऑफ दीज चैनल्स, दैट इज ऑल्सो मिसिंग। There are products which are suitable for Instagram, for example. They should not be shared on LinkedIn, for God's sake. पर चूंकि पता नहीं है, लिहाजा हर जगह पे प्रोडक्ट पहुंची रही है, एंड अल्टीमेटली जो अक्लमंद कस्टमर है वो लूज कर जाता है। ये किस तरह की, ये तो एसोसिएट ही नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आपको भी अगर अपनी पर्सनालिटी का, अपने इमेज का एज ए प्रोडक्ट ख्याल नहीं है, तो ना चाहते हुए भी, और कई स्टूडेंट्स चाहते हुए भी टीचर से भी अपनी बदनामी करवाते हैं, क्लास फेलोज के साथ भी करवाते हैं, और डिफेम होते रहते हैं, और उसकी प्राइस सारी उम्र पे करते रहते हैं। कहीं पे जॉब आती है, कहीं पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि ये तो क्लास में भी ऐसे ही बदतमीज थे यार, इनको नहीं देना। ऑल ऑफ द लाइफ यू सफर, बिकॉज आपने अपने आप को प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, आपने अपना कोई इमेज बनाया ही नहीं कि अभी तो बीबी है, अभी तो 20-24 साल उम्र है, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं। इट ट्रेवल्स विद यू। सो एनीबडी हु डज नॉट नो हाउ टू मेक हिज और हर पर्सनैलिटी एज ए प्रोडक्ट एंड प्रमोट इट, उसने क्या अपना बिजनेस क्या प्रमोट कर रहे हैं। आई हैव मेट सो मेनी जनरल मैनेजर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अर्निंग lakhs of rupees per month and they have no good relations with their family. तो वो कंपनी के लिए क्या रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेंगे। These small little things जो नजर आती हैं, they have very very serious consequences. So please do not waste these 4 years of BBA. If you don't want to struggle more and repent more, make use of them. जहां पे आपको मौका मिलता है, प्लीज अपने आप को डेवलप कीजिए। आपको ना इंटर्नशिप की जरूरत पड़ेगी, आपको ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। क्यों? कि आपने ये 4 साल में अपने बिजनेस स्किल्स को इंप्रूव किया। बिजनेस स्किल्स की अगर बात आई, 2 चीजें मैं एक पहले बात कर चुका हूं आपसे, कि आपने अपने आप को जितना ज्यादा कनेक्ट किया एज ए ह्यूमन बीइंग अपने कैरियर या जॉब के साथ, उतना यू विल बी सक्सेसफुल। अब डिग्री आपकी करती है कि नहीं करती, यूनिवर्सिटी करती है कि नहीं करती, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, बट चूंकि इफेक्टिव आप हैं, यू हैव टू थिंक मोर। और उसमें मैं जो कंक्लूडिंग पॉइंट है, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, वो यही है कि अभी जमाना चेंज हो चुका है प्लीज, और आप लोग ज्यादा नुकसान भी उठा रहे हो और ज्यादा फायदा भी उठा सकते हो, बिकॉज इतने चैनल्स हैं, all sorts of material and videos are available on any topic. घर बैठे बैठे आप दुनिया जहान की मार्केट्स को देख सकते हो, वहां पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, प्रमोशन के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, सप्लाई चेन कैसे मैनेज हो रही। इसके बावजूद अगर आप नहीं करते तो देन जाहिर कंट्री विल बी एट लॉस्ट, यू विल बी एट लॉस्ट। सो एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग में The take home lesson is that concepts clear कीजिए। अपने आप को पहले, अगर आप कोताहियां करते रहे तो अपने आप को बराए मेहरबानी एज ए प्रोडक्ट
डेवलप कीजिए, क्लास में अपना इमेज बनाइए, टीचर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, और यहीं से आपको प्रैक्टिस मिलेगी। थर्ड चीज, आपके पास अगर आइडिया स्ट्रांग है, फॉरगेट अबाउट द मनी। 90% बिजनेसेस के लिए उधार नहीं चाहिए, इसको अपने ज़हन में बिठा लें। और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि जल्द से जल्द आप उसको इंप्लीमेंट करें, मार्केट में लेके आएं। जब बार्गेनिंग पोजीशन आपकी स्ट्रांग होगी, जब आपके आइडिया में, प्रोडक्ट में जान होगी, लोग फंडिंग भी करेंगे, पार्टनरशिप्स भी करेंगे। बट विद ऑर्डिनरी आइडियाज कमिंग एंड गोइंग एवरी डे, why would somebody burn his or her money in your business? Why? बिल्कुल उसी तरीके से you want a good career, a good job, ask yourself why? आपके पल्ले है क्या जिसके बेस पे कोई भी कंपनी कहे कि आ जाओ भाई मेरे पास जॉब करो? Why? चैरिटी तो नहीं कोई खुली हुई। और अभी भी पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, बिजनेस में और जॉब्स में, बेस्ट ऑफ द सीट्स आर वेकेंट। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लाखों बीबीए डिग्री लेके लड़के लड़कियां जा कर रहे हैं भाई, कहां जा रहे हैं? सोचने की बात है। सीट्स क्यों वेकेंट पड़ी हुई? लैक ऑफ स्किल विल नॉट टेक यू एनीवेयर इन लाइफ, व्हाट टू टॉक अबाउट बिजनेस और कैरियर, लाइफ में भी। सो वो लेसन आप देख लेंगे और कभी मौका मिला आइंदा तो फिर उस पर बात करेंगे। लेसन लर्न, एक लेसन का मैं जिक्र कर दूं जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग में भी बहुत काम आएगा, एंड दैट इज द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर फैसिलिटेशन। हमारे यहां कॉन्सेप्ट्स हैं, कस्टमर सर्विस कर लो, आफ्टर सेल सर्विस कर लो, बट इस वक्त दुनिया इतनी तेज रफ्तार, इतनी हाई टेक बेस हो चुकी है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। So customer facilitation is the topmost agenda after innovation with the companies. और कस्टमर फैसिलिटेशन के जो आप नमूने देखेंगे थ्रू वीडियोस और थ्रू योर पर्सनल एक्सपीरियंस, तब आपको पता चलेगा कि हाउ माइंड बॉगलिंग दे आर। हम यहाँ पे एक अच्छी चेयर और ये ओके, दिस इज स्टूडेंट फैसिलिटेशन। जबकि जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं रिसर्च में या वैसे, उनमें आप कस्टमर फैसिलिटेशन देख लें। आप दुबई एक्सपो पे मैं डिटेल से इसलिए बात नहीं कर रहा कि आप वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अंदाजा हो जाएगा, लेकिन वहां पे भी अनबिलीवेबल डिस्प्ले ऑफ कस्टमर फैसिलिटेशन। एंड यू नो इट्स नॉट, ये हमारा जो एक्सपो सेंटर है, इट इज देयर वन कॉर्नर, वन स्मॉल लिटिल कॉर्नर कैरिंग 2 to 3 countries, एंड देयर आर 191 countries। ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? कदम कदम पे आप जैसे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं टू फैसिलिटेट एंड गाइड द टूरिस्ट हु आर कमिंग ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पानी पीना, खाना, वॉशरूम्स के क्या इंतजामात हैं, केबल चार्जिंग, बैठने का क्या बंदोबस्त है, ट्रांसपोर्ट का क्या बंदोबस्त है। अनबिलीवेबल डिस्प्ले ऑफ कस्टमर फैसिलिटेशन। और आज आप अच्छी प्रोडक्ट के साथ सिर्फ अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, योर बिजनेस विल बी मच मच मोर सक्सेसफुल। हमें टेक्निकल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, हमें जो उसके स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हैं, वो तो बाद की बात है। ये 2-3 छोटी छोटी चीजें आप कर लें किसी भी फील्ड में, बिकॉज वी आर लैकिंग। नंबर पे मत जाइए प्लीज, आज का जो मेन लेसन है मेरा, नंबर्स पे मत जाइए। वी आर इनटू नंबर गेम। इतने नंबर ऑफ कॉलेजेस, इतने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, इतने मिलियन स्टूडेंट बीबीए कर गए, इट्स ऑल नंबर्स। क्वालिटी इज वेरी वेरी। बिजनेसेस में भी यही हाल। सो ये आपके लिए मोटिवेशन भी है कि व्हाट ऑल अदर्स आर नॉट डूइंग, यू प्रोवाइड देम। तो क्यों नहीं आएंगे आपके पास कस्टमर्स? तो ये छोटे थोड़े से टाइम में आई हैव शेयर्ड सम पर्सनल थॉट्स विद यू। और अभी मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछिए ताकि आपको और फायदा हो, आप और क्लियर हो।